Okay, good morning, students. So today we'll learn how to express terminating and non-terminating repeating decimals as P by Q, a very important question. And in this video, we'll be also discussing a short trick to write the non-terminating repeating decimals as P by Q, a very important. And with the help of this, you can easily write any non-terminating repeating decimal in the form of P by Q in a few seconds. चुटकी बजाते हुए आप इसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वीडियो देखने के बाद. तो हम देखते हैं. Let's see. Before that, I would like to remind you that हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. जो आपके रियल नंबर्स है वो दो टाइप के होते हैं. सबसे पहला रैशनल, दूसरा इररेशनल. जो रैशनल नंबर्स होते हैं दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले ही बच्चों, रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे, ये हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. वन इज रैशनल and the other one is irrational. Now if you see the decimal representation of these numbers, again these are categorized into two types. Rational numbers are either terminating or non-terminating. Or non-terminating repeating. We can take certain examples. Example, what is only 2 by 5 which is equal to 0.4, this is terminating. 3 upon 5 or 3 upon 2, it is 1.5, again it is terminating. When we say non-terminating repeating, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमने लिखा 2 upon 3, तो ये होता है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, or we can write it as 0.6 bar, right? So a very simple logic to check whether any rational number will represent a terminating decimal or a non-terminating repeating decimal है, जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, बट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि यदि if the denominator has only 2 or only 5 or 2 and 5 as factors, again if I say 17 upon 10, it is 1.7, this is again non-terminating. Sorry, this is again terminating. If I write 3 upon 7, this will be a non-terminating repeating decimal. Okay? 3 upon 7 is non-terminating repeating decimal. Another example you can take 0.132 bar. 132 bar. This is an example of non-terminating and repeating decimal. Both these are rational numbers. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, terminating decimal जो होता है, it has, the denominator has only 2 or only 5 or only 2 and 5. Or only 2 and 5 as factors. Denominator has only 2 or only 5 or only 2 and 5 as factors, or you can say denominator is of the form in a terminating decimal
terminating decimal. The denominator is of the form is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. That is, it has only 2 or 5 as factors. तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए. ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. का रैशनल नंबर रिप्रेजेंट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. What can you say about the denominator? So what can we say about the denominator? We can say the denominator is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, or we can say that the denominator has only 2 or 5 as factors. Okay, so this was the introductory part of real numbers. So now today's topic is to express the terminating and non-terminating repeating decimals in the form of p by q. So first let's take a very simple one, that is terminating decimal. This will categorize into 3 types. Okay, first let's take how to write terminating decimals as p by q. Very simple one, terminating decimal as p by q. Let's take some examples जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बच्चों. ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए. मान लीजिए यहां पर लिखा 0.375. दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. डॉट 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 नहीं लगाया मतलब टर्मिनेटिंग है. सो 0.375. देखिए आपने बचपन में ही पढ़ा हुआ, डेसिमल हटा दो, लिखिए 375, यहां पर लिखिए 1 पहले. और अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3, 3 डिजिट्स है आपके पास डेसिमल के बाद. तो यहां पर 3 जीरो लगा दे. सिंपल सा तरीका, 3 जीरो लगा दिए. अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे बच्चों. तो देखिए 25 से कैंसिल हो रहा है, हम 25 से काट देते हैं सीधा. 25 1 जा 25, यहां पर 12 बचेगा तो 125 हो गया. 25 5 जा 125, और उसके बाद इसको आपने 25 से कैंसिल किया तो 40 टाइम्स कैंसिल हो गया. और कैंसिल होगा, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे हमेशा. 5 से काटते हैं तो 3/8 हो गया. 5 3 जा 5 8 जा, so 3/8 is 0.375. Okay, let's take one more example. 0.46, or let's take 5.46. 5.46 very simple. again डेसिमल हटा दो, नंबर बन गया 546. 1 लिखा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो. 2 जीरो लगा दो. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 2 से काटें, 2 से कैंसिल करते हैं. 2 2 जार 4, 1 बचा. 2 7 जार 14, 2 3 जार 6 अपॉन 50. बस अब इसके आगे नहीं कैंसिल होगा. एंड दिस इज योर आंसर. very simple one. Okay, so this you have already learnt earlier. नोट कर लें बच्चों. Okay, now before approaching to the next one, see we have non-terminating repeating decimals को हम थोड़ा सा देखें. non-terminating repeating decimals. रिपीटिंग इसके लिए बच्चों वर्ड रिकरिंग भी यूज करते हैं. रिकरिंग भी यूज करते हैं बच्चे इसके लिए. रिकरिंग डेसिमल्स.
This will be categorizing into two types again. Purely repeating और दूसरा लेंगे मिक्स्ड रिपीटिंग. Mixed repeating. Purely repeating means all digits after decimal, decimal के बाद are repeated. Let's take an example. मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है 13.25 बार. 2 और 5 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है 2 5 और दोनों ही रिपीट हो रहे हैं. दूसरा एग्जाम्पल 0.56 बार. थर्ड एग्जाम्पल 3.142857 bar. These are all purely repeating. All digits after the decimal are repeated. Now in mixed repeating, at least one digit just after decimal is not repeated. At least one digit after the decimal is not repeated. Let's take an example. तो यहां पे बच्चों एग्जाम्पल लिखते हैं. Example is 13.25 बार. देखिए ध्यान से, यहां पे 2 5 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, यहां केवल 5 के ऊपर बार लिखा है, मतलब 2 रिपीट नहीं हो रहा है. यहां जो नंबर लिखा है दिस इज 13.2525 dot dot dot. It is like this. This is 0.5656 dot dot dot. This one is 3.142857 142857 dot dot dot. But when you see this is actually 13.2555 dot dot dot. Only 5 is repeated. Okay, so this is another one. Let's take another example. Second example is suppose 0.3563 बार. 0.3563 बार. अब देखिए यहां पे 0.35 तो 35 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 63 डॉट 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 ये रिपीट हो रहा है. 63 रिपीट हो रहा है, 35 रिपीट नहीं होगा. ओके, so these are two categories. Just note it down. Okay, so let's convert this purely repeating in the form of P by Q.
First we'll see the method how to convert it, and then finally I will give you a short trick also. So let's take an example directly. Example number 1. If it is 2.53 bar, so our first step is let x is equal to 2.53 बार, और ये बेटा 2.53 बार का मतलब होता है 2.5353 डॉट 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 5353 रिपीट होगा. अब यहां बच्चों ये देखना है हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड. माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर रिपीटेड. How many digits after decimal are repeated? This is my question. Now if one digit is repeated, if your answer is one digit, multiply equation 1 by 10. 2 digits, multiply equation 1 by 100. मतलब जितने डिजिट्स रिपीट हुए उतने ही जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देना है आपको. 3 digits, multiply by 1000 and so on. So according to this question, here 2 digits are repeated, so multiply equation 1 by 100. फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है. 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. 100 इंटू एक्स, 100x इक्वल टू, अब आपको मालूम है कि जब भी हम ऐसे नंबर को, डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी हमारा डेसिमल नंबर प्लेस यहां पर है. 100 मतलब 2 जीरोस है हमारे पास, तो डेसिमल हमारा शिफ्ट होकर के राइट साइड में यहां पर बैठ जाएगा, यहां आ जाएगा. मतलब 53 के बाद डेसिमल आ गया, डेसिमल शिफ्ट हो गया 2 डिजिट्स राइट. सो हियर वी गेट 253.53. बाकी सब एज इट इज रहेगा बच्चों, 5353 dot dot dot, or simply what you can write 253.53 bar as it is. डेसिमल के बाद कोई चेंजेस नहीं क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है. अब हमको करना है बच्चों इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन है 100x माइनस x, ऐसे लिखते हैं. चलिए 100x इक्वल टू 253.53 बार, और फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2.53 बार. आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पे माइनस, यहां पर भी माइनस. 100x माइनस x आपके पास बचेगा 99x, और डेसिमल के बाद सब 0 0 हो गया, ध्यान रखें. 253 माइनस 2 हमेशा यही होगा, दैट इज 251. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 251 अपॉन 99. अब देखिए यदि ये कैंसिल हो रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज वी कैन लीव इट एज इट इज. ओके, तो देखिए 3 से हो रहा है कि 9 से हो रहा है. 5 2 7 3 8, 5 + 2 7 1 8. नहीं हो रहा कैंसिल. 3 से नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं होगा. 11 से चेक कर लेते हैं. 11 2 22, 3 बचेगा, 11 से भी नहीं हो रहा. सो दिस इज फाइनली योर आंसर. आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे. सो फाइनली आवर आंसर इज 2.53 बार
is equal to 251 upon 99. This is your answer. Okay, now you see a short trick. अब देखिए बच्चों, शॉर्ट ट्रिक क्या है? वेरी सिंपल, 2.53 बार। पहले आपको डेसिमल हटा के पूरा नंबर लिखना है न्यूमरेटर में, 253 माइनस डेसिमल से पहले वाला नंबर लिखना है 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे, उतनी बार लिखना है जितनी बार यहां पर जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट रिपीट हुए तो 2 बार 9 लिखेंगे तो 99 हो गया। So my answer is simply 251 upon 99. A very simple trick, very simple one. Okay? Clear? और एग्जाम्पल देखेंगे अभी आप। अब देखिए, चूंकि हमने शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी सीख ली है, तो पहले तो मैं आंसर लिख लेता हूं, बाद में फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा, सो दैट आई कैन वेरीफाई आई एम गेटिंग द राइट आंसर। तो पूरा नंबर लिखेंगे पहले 19267 माइनस द नंबर बिफोर द डेसिमल 19 अपॉन, यहां पर 3 डिजिट्स रिपीट हुए हैं तो मुझे 9 लिखना है 3 बार 999। सिंपल, माइनस कर लीजिए, 17 माइनस 9 is 8, फिर 5 minus 1 is 4, then comes 291 upon 999. Okay, let's see if we can cancel it out. 1 plus 9 10 plus 2 12, 12 plus 4 is 16 और 16 plus 8 24, तो 3 से तो कैंसिल हो रहा है, तो 333 आ गया। 3 6 18, 1 बचा, 3 4 12, फिर 3 1 3, 3 6 18। फिर से चेक कर लें, 6 plus 1 7 plus 4 11 plus 6 17, तो 3 से तो नहीं होगा, सो इट कैनॉट बी कैंसल्ड फर्दर। तो ये हो गया 6416 डिवाइडेड बाय 333। ओके, तो ये तो आपका आंसर आना चाहिए। अब हम देखते हैं मेथड क्या थी। मेथड सिंपल थी, लेट x इज इक्वल टू 19.267 बार, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 3 डिजिट्स रिपीट हुए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 1000x इक्वल टू 192 19267.267 बार। बार एज इट इज रहता है, अभी इससे पहले भी आपको बताया था, केवल डेसिमल उठा के 3 डिजिट यहां शिफ्ट हो जाएगा, और बार है तो रिपीटिशन ऑलरेडी हो रहा है, इसलिए एज इट इज आता है। अब हमेशा इक्वेशन 2 में से 1 को ही माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 1000x माइनस 1x इज 999x, देखिए डिनोमिनेटर आ गया आपका, इक्वल टू 19267 माइनस 19, डेसिमल के बाद तो बराबर डिजिट से तो 0 हो जाएगा, 17 माइनस 9 इज 8, 5 माइनस 1 इज 4, 291, so we are getting 19248, so therefore again we have obtained the same, x is equal to 19248 upon 999, जिसको हमने कैंसिल किया था, 6416 divided by 333. This is your answer. So very simple. Remember this short trick. Short trick क्या थी बच्चों?
शॉर्ट ट्रिक थी नंबर obtained by removing decimal, डेसिमल हटा देना और पूरा नंबर लिखना, फुल नंबर माइनस नंबर बिफोर डेसिमल, divided by 9 is to be written how many times, number of times, number of digits repeated. नाइन आपको कितनी बार लिखना है? जितनी बार डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हुई है आफ्टर डेसिमल. तो ये बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है बच्चों. जस्ट रिमेंबर दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि एनटीएससी में आते हैं. और भी अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देखते हैं तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. A very important one. Okay students, so the next one with that is convert mixed repeating as p by q. तो mixed repeating बच्चों अभी बताया था कि डेसिमल के बाद यदि एक भी डिजिट ऐसा है, यहाँ पे देखिए 2 ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए 5 ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 6 रिपीट हो रहा है. एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज नॉट रिपीटेड, देन सच नंबर्स आर नोन एज मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल्स. सी द स्टेप्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे. द फर्स्ट स्टेप नंबर 1, लेट x is equal to 6.23 बार. ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब यहां बच्चों पहले देखना है आपको कि कितने डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हुए. हाउ मेनी डिजिट्स, 2 स्टेप्स में देखेंगे. हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर नॉट रिपीटेड. तो यहां पे यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर इज 1. स्टेप्स वही है. इफ 1 डिजिट इज नॉट रिपीटेड, मल्टीप्लाई बाय 10. इफ 2 डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सो ऑन. सो हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बच्चों जब 10 से मल्टीप्लाई किया, अभी बताया था कि डेसिमल आपका जो है 1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 1 डिजिट शिफ्ट होकर के यहां पे आ जाएगा. मतलब अब आपका नंबर हो गया, इधर हो गया 10x इक्वल टू 62.3 बार. ये बना दी हमने इक्वेशन नंबर 2. अब आपको देखना है बच्चों इसमें हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड. हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर रिपीटेड. So again the answer is 1. Answer is 1 again. So again the same process. When 1 digit is repeated, multiply equation number 2 by 10. 2 digits repeated, multiply by 100 and so on. तो यहां पे आपकी एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए यहां पर multiply equation number 2 by 10
अब सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, 10x इंटू एक्स 100x हो गया, इक्वल टू फिर से यहां वही सिचुएशन, डेसिमल आपका एक डिजिट शिफ्ट होगा तो 3 के बाद आएगा, मतलब यहां पर हमारे पास नंबर हो गया 623.3 बार। बार एज इट इज रहता है डेसिमल के बाद, ये ध्यान रखना, 623.3 बार। अब ना इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड। देखिए मेरी थर्ड इक्वेशन थी 100x इक्वल टू 623.3 बार, और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी 10x इज इक्वल टू 62.3 बार। बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल और डेसिमल के बाद पूरा सेम, सब्ट्रैक्ट 100x माइनस 10x 90x इक्वल टू, डेसिमल के बाद सब हट जाएगा, यहां सीधा 3 माइनस 2 1, 12 माइनस 6 6 एंड दिस इज 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 561 upon 90. Cancel it if possible. 1 plus 6 7 plus 5 12, 3 से डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 7 जा 21 अपॉन 30। और देखते हैं, 8 प्लस 1 9 प्लस 7 16, नॉट डिविजिबल बाय 3, अब 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, सो द आंसर इज 6.23 बार is equal to 187 upon 30 and this is the answer. Okay, अब देखिएगा बच्चों इसका भी शॉर्टकट बता, 6.23 बार, so first we write the complete number in the numerator by removing the decimal, पूरा नंबर लिखना है as it is, यहां पे आएगा 623 माइनस बार वाला पार्ट हटा के जो नंबर बन रहा है वो है 62, बार वाला पार्ट हटा के जो नंबर बन रहा है वो है 62 माइनस 62 अपॉन, अब देखिए एक डिजिट रिपीट हुआ है एक नहीं हुआ है, एक डिजिट रिपीट हुआ तो एक बार 9 लिखना है और एक नहीं हुआ तो उसके लिए 0 लगाना है, जो हुआ उसके लिए 9 लिखना है, जो नहीं हुआ उसके लिए 0 लगाना है। सो अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग, दैट इज 561 अपॉन 90। क्लियर, राइट, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। अब नेक्स्ट वाले के लिए पहले हम आंसर निकालेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। The number is 13.536 bar. Bar is only on 36. 5 के ऊपर बार नहीं है, 5 रिपीट नहीं हुआ है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो अपन आंसर निकाल लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से, और ये शॉर्ट ट्रिक बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है। इफ यू रिमेंबर दिस शॉर्ट ट्रिक्स, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर इन अ वेरी लेस टाइम, स्पेशली व्हेन यू आर सॉल्विंग MCQ in any competitive exam or even in your school exam. So here सबसे पहले पूरा नंबर लिखना है, वो है आपका 13,536 पूरा नंबर, इसमें से माइनस करेंगे सिर्फ इतना 135,
135 अपॉन, अब एक डिजिट है जो रिपीट, दो डिजिट्स है जो रिपीट हुए हैं और एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हुआ है। तो जो रिपीट हुए हैं उनके लिए जैसा पिछली बार किया था तो 2 बार 9 लिखा, क्योंकि 2 बार डिजिट्स रिपीट हुए, 2 डिजिट्स रिपीट हुए इसलिए 2 बार 9 लिखा। एक डिजिट रिपीट नहीं हुआ उसके लिए 1 0 लगाना है। जितने डिजिट्स रिपीट हुए हैं उतनी बार 9 लिखना है, जितने डिजिट्स रिपीट हुए उतनी बार 9 लिखना है। उतनी बार 9 एंड जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हुए उतने 0। समझ आ गया? तो 2 डिजिट्स रिपीट हुए थे तो 2 बार 9, एक नहीं रिपीट हुआ था तो 1 बार 0। अब आंसर माइनस करके निकाल लेते हैं, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक डिनोमिनेटर लिखने के लिए। 6 - 5 हो गया 1, 3 - 3 हो गया 0 बेटा, 5 - 1 4, 1 3 as it is अपॉन 990। अब देखिए 2 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 से चेक कर लेते हैं, 9 से पता चल जाएगा और फिर 11 से देख लेंगे। 1 + 3 4 + 4 8 + 1 9, 9 है सम, मतलब 9 से कैंसिल हो रहा है तो डायरेक्ट 9 से ही काट देंगे। 9 1 जार 9 बचा 4, 9 4 जार 36 बचा 8, 9 8 जार 72 फिर से बच गया 8, 9 9 जार 81 अपॉन जब 9 से कैंसिल किया तो 110 बच गया यहाँ पे 110। ओके, अब बच्चों 11 से चेक करना है तो हमें मालूम है डिविजिबिलिटी रूल, 1 + 8 9 और 9 + 4 13 और 13 में से 9 माइनस किया तो 4, मतलब 11 से कैंसिल नहीं होगा। सो योर आंसर इज द सेम, दैट इज 1489 upon 110 will be the final answer. Now let's solve this by the method. अब इसको मेथड से सॉल्व करते हैं। सो बच्चों यदि आपको 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है तो आपको पूरा मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन यदि 1 नंबर का MCQ आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल के लिख सकते हैं। सो लेट x is equal to 13.536 बार, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। अब बोला था एक डिजिट रिपीट नहीं हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही डिजिट है तो हो गया 10x, 135.36 बार। सेकंड इक्वेशन हो गई, देखिए यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो डेसिमल यहां पर आ जाएगा, यहां आ गया हमारा डेसिमल। अब यहां पर 2 डिजिट्स रिपीट हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, उतने ही 0 लगाना होता है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू 10 बिकम्स 1000, तो ये हो गया 1000। और जो डेसिमल है हमारा वो यहां से 2 डिजिट भाग जाएगा, 2 डिजिट भागेगा, 2 डिजिट, लेकिन बार एज इट इज रहता है, ये भी बताया। तो आपको यहां ध्यान रखना बच्चों, 13536 आ गया और 0.36 बार जरूर लिखना है, अदरवाइज पूरा सॉल्यूशन यहां से गलत हो जाएगा बेटा। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, जो कि हमने अभी इससे पहले भी किया था, थर्ड माइनस सेकंड। तो इसको ऐसे लिख लें, 1000x कॉलम वाइज लिख लीजिएगा,
13536.36 बार। इसमें से माइनस करना है सेकेंड इक्वेशन जो कि थी 10x इक्वल टू 135.36 बार। अब देखिए बच्चों, माइनस किया, 1000 में से 10 माइनस किया 990 आ जाएगा। और यहां पे माइनस करें 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4 3 1, x इज 13401 अपॉन 990 जो कि हमने कैंसिल करके लिखा था 1489 अपॉन 110। Okay, so remember these short tricks. These are very important, students, for solving the multiple choice questions. Okay, practice it. Practice makes maths perfect. To be perfect in maths, you need a lot of practice. जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी प्रॉब्लम्स उतनी सॉल्व होती जाएंगी। और definitely a time comes when you become perfect in mathematics. Enjoy maths, practice more, you will be perfect. And enjoy the Maths by Pradeep Burde. Subscribe the channel and don't forget to click on the bell icon, please. Thank you. Have a nice day.